Hello students, good morning. How are you all? I hope you all are fine. So today in this video we are going to learn standard 7 social science and chapter number 5, that is India, agriculture, industry and transportation. In the previous video we have already discussed that India is called the agricultural country. Why? Because nearby 70% of people are related, or we can say engaged in the cultural activity. And then we have already discussed about the types of agriculture, and into that first we have discussed about normal, or we can say unirrigated farming. Then second one we have discussed, that is dry farming and the crops which are related with that farming, and third one irrigation. And into that we have completed number 1, that is sugarcane, and second one that we have completed, that is cotton. Okay, now today the third crop which is connected with the irrigation farming. Now what is irrigation farming? Irrigation farming means the land where the farming is done through irrigation, like wells, lakes, canals, etc. So it is called irrigation farming. So third one is jute. So jute crops takes 8 to 10 months to get ready. In earlier chapter we have discussed that if we are talking about the cotton crop, so cotton crop get 6 to 8 months to get ready. Here jute crop takes 8 to 10 months to get ready. मतलब 8 to 10 years, मतलब nearby 1 year it takes to get ready. The harvested stem of the jute fiber is first tied together and soaked into the water to soften. See what happened, the harvested stem, मतलब stem मतलब जो मेन पोर्सन होता है, आपको पता है, ओके, जिसको थर्ड जैसा बोलेंगे, बट थर्ड नहीं, यहाँ पे स्टेम. ओके, सो दिस इज कॉल्ड स्टेम. आपने साइंस में भी पढ़ा होगा. ऑफ जूट फाइबर, तो जूट के जो स्टेम होते हैं उसको क्या करते हैं, फर्स्ट टाइड टुगेदर, उसको एक दूसरे के साथ पहले टाई किया जाता है, एंड सोक इन द वाटर. सोक करना मतलब डुबोना, भिगोना. कहाँ पे? वाटर में. वाई? टू मेक इट सॉफ्टन. आपने ऐसे ये सी दिस इज द स्ट्रिंग विच इज मेड विद द जूट, जिसको हम सूतड़ी बोलते हैं, राइट. तो व्हाट हैपन, इट इज लाइक इन अ हार्ड फॉर्म. तो कभी हमें यूज़ करना होता है तो पहले हम लोग पानी में उसको सोक करते हैं, फिर क्या करते हैं, उसका यूज़ करते हैं, देन इट बिकेम वेरी टाइट. सो द सेम थिंग हियर ऑल्सो हैपन. द फाइबर्स आर देन स्ट्रिप्ड फ्रॉम द स्टॉक्स इन लॉन्ग स्ट्रेट्स एंड वॉश्ड इन क्लियर रनिंग वाटर. सी व्हाट हैपन, फाइबर्स उसमें से निकाले जाते हैं. स्ट्रिप करना मतलब पट्टी बनाना. कहाँ से? तो स्टॉक इन लॉन्ग स्ट्रेंड्स, मतलब बड़ी बड़ी, यू कैन सी हियर ऐसे, ओके, ये राउंड में बंधी हुई है, उसको निकालते हैं स्ट्रिप फॉर्म में. देन वॉश्ड इन अ क्लियर रनिंग वाटर, मतलब जो बहता हुआ पानी है उसको वहाँ पे क्लीन करते हैं. देन दे आर हंग अप और स्प्रेड ऑन द थ्रेड्स्ड रूफ टू ड्राई. थ्रेड्स्ड रूफ मतलब वी कैन से कि अ ह्यूज, और वी कैन से अ हाउस रूफ with a plant material, made with a plant material, made with a plant material. मतलब एक टेरेस जैसा होता है, पर वो भी कहाँ कैसे बना होता है कि प्लांट से ही बनाया जाता है, प्लांट मटेरियल से यूज़ करके. वहाँ पे उसको स्प्रेड करके क्या किया जाता है, उसको सुखाने के लिए, ड्राई करने के लिए रख दिया जाता है. Jute is grown in West Bengal, Assam, Bihar and Odisha. So you have to remember this, that jute is grown in West Bengal, Assam, Bihar and even Odisha. Then third one is paddy, जिसको हम जौ बोलेंगे, जिसमें से राइस निकलते हैं. We can say rice. Okay, you can see here in picture. फिर उसको आप लोग मतलब ब्रेक करोगे तो you will get rice. So paddy is an important crop of India. It is a staple diet, मतलब main diet of most of the Indian. You know very well, भले वो पुअर हो या फिर रिच हो, डेली राइस तो चाहिए ही चाहिए. बट वी आर यूजिंग इन अ डिफरेंट फॉर्म. ऑच पॉच मतलब खिचड़ी बना के खाते हैं, कभी राइस बनाते हैं एंड ऑल दैट थिंग. इट इज़ ग्रोन इज वेस्ट बंगाल, बिहार, पंजाब, असम, मध्य प्रदेश, ओडिशा, केरला, तमिलनाडु एंड गुजरात. कहाँ कहाँ पे पैडी और राइस ग्रो होता है? सो वेस्ट बंगाल, बिहार, पंजाब, असम, मध्य प्रदेश, ओडिशा, केरला, तमिलनाडु एंड इवन गुजरात. तो these are the things which are related with the irrigation farming. Now fourth one, plantation. Plantation करना मतलब छोटे छोटे प्लांट है उसको ग्रो करना. So what is plantation? See,
When certain crops are grown in the garden method and taken care of as garden, it is called plantation. मतलब ऐसे crops जिसको garden में हम लोग कैसे garden method में, now see for example you have garden, right? So you are planting the small, we can say plants, then after you can take care of that thing, care करते हो ना, same यहाँ पे भी है कि ऐसे ही प्लांटेशन किया जाता है क्रॉप्स को, एंड दे आर कॉल्ड प्लांटेशन. फॉर एग्जाम्पल इट इंक्लूड्स टी, कॉफ़ी, फ्रूट ऑर्चर्ड्स, वेजिटेबल्स, कोकोनट पाम्स एक्सेट्रा. तो कौन कौन से प्लांटेशन में होते हैं? सो टी, कॉफ़ी, फ्रूट ऑर्चर्ड्स मतलब जो फ्रूट्स के गार्डन्स होते हैं वो, वेजिटेबल्स, कोकोनट पाम्स, ओके, ऑल द थिंग्स आर कनेक्टेड विद द प्लांटेशन. सो फर्स्ट वन, टी. सो टी इज़ ग्रोन ऑन द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स वेयर द फॉरेस्ट आर क्लीन. स्लोप्स मतलब ऐसे, सपोज ये हमारा माउंटेन है तो स्लोप एरिया में किया जाता है. व्हाट इज़ द रीज़न? बिकॉज ये जो टी और कॉफ़ी के जो रूट्स होते हैं दे आर वेरी वीक, और कंटिन्यूसली वहाँ पे पानी जमा रहेगा तो वो बिगड़ जाएंगे. तो व्हाट इज़ द रीज़न कि सपोज़ यहाँ से रेन हुआ तो हमने ऑलरेडी स्लोपी एरिया में रखा है तो सीधा पानी आके नीचे, तो जितना चाहिए होगा उतना ही पानी वहाँ पर रहेगा, बाकी सारा पानी है वो नीचे आ जाएगा. दैट्स वाई दे आर ग्रोन ऑन द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन. दैट इज़ अ बेसिक और मेन रीज़न. वाटर logging near the roots of the tree plants is harmful for the plantation. See, we have already discussed. Logging near मतलब store हो गया पानी. Where? So near the roots of the tea plants or coffee plants. So it is harmful for plantation. It cannot be grown. That is why it is grown on the mountain slope, and that is the reason. क्योंकि जो भी पानी आएगा या तो irrigation से जो water हम लोग देंगे तो सीधा नीचे, okay, and it will not get logged over there. So that is the basic or we can say main reason. असम प्रोड्यूसेस मैक्सिमम टी. ओके, जो असम है वहाँ पे मैक्सिमम ट्री प्रोड्यूस होती है. बिसाइड असम, टी इज़ प्रोड्यूस इन वेस्ट बंगाल, केरला, कर्नाटक एंड तमिलनाडु. सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. असम जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है, फिर उसको बाद करके वेस्ट बंगाल, केरला, कर्नाटक एंड तमिलनाडु. यू कैन सी हियर द फोटोग्राफ ऑफ टी प्लांटेशन. देखो ये स्लोपी एरिया में किया हुआ है. ओके, एंड द टी विच वी आर यूजिंग. India is the leading producer of the tea in the world, and as far as if we are compare with the other countries, so India is the leading producer, मतलब major main producer of the tea in the world. Then interesting thing is that discovery of the coffee plant. So Kaldi daily took his goats for grazing. Grazing करना मतलब grass खाने के लिए लेके जाता था. The name of that person was Kaldi. He was fed up with the frolicking goats. Now frolicking मतलब happily. वो क्या करता था? फेड अप करना, मतलब वो अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहा था हैप्पीली विद द गॉड्स. वन डे ही एट द फ्रूट ऑफ द प्लांट विच हिज गॉड्स वर ईटिंग एंड ही ऑल्सो फ्रेश अप. वन डे वॉट हैपन, सडनली ही एट द फ्रूट ऑफ द प्लांट. एक कोई प्लांट था उसका फ्रूट उसने खा लिया और वही सेम जो है वो उसकी गॉड्स ने भी खाया. तो वॉट दे फेल्ट, तो इवन दैट पर्सन मतलब काल्दी ऑल्सो फेल्ट फ्रेश, उसको एकदम फ्रेश लगा. Thus he introduced the coffee to the world, और ऐसे उसने कॉफ़ी को इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड में. यू कैन सी हियर द सीड्स, ओके, ऑफ द कॉफ़ी. इट्स यू नो वेरी कॉस्टली. जो हम लोग हाई कॉफ़ी बोलते हैं, हाई कॉफ़ी मतलब मेजर पार्ट जो होता है कॉफ़ी का, आपने सुना होगा नेस्ले आती है ब्रांड, ओके, और फॉरेन कंट्री में ऐसे सीड्स से कॉफ़ी बनाई जाती है. वी हैव पाउडर फॉर्म, ओके, और जनरली वहाँ पे 40 to 50% ही कॉफ़ी होती है, बाकी जो है वो अदर थिंग्स होती है. बट इन फॉरेन कंट्रीज़ जो है, या तो फिर नेस्ले की और हाई कॉफ़ी आप लोग पियोगे तो वहाँ पे कॉफ़ी सीड्स को यूज़ किया जाता है. आपने देखा होगा कि एक जो ऐसा मशीन आता है जिसके ऊपर सीड्स रखे जाते हैं और वो फिल्टर होके फिर हम लोग वहाँ से कलेक्ट करते हैं. कॉफ़ी इज़ प्रोड्यूस इन कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला. सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो इन कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला वहाँ पे क्या होता है, ये कॉफ़ी है वो प्रोड्यूस होती है. Then come irrigation, मतलब to give water to the crops. So monsoon in India is irregular and uncertain. So what happens, sometimes it is very irregular. कभी जून में भी रेन होता है, अभी हम लोग बात करें so दिसंबर में भी रेन हुआ. Okay, so that is very uncertain or we can say irregular. Most of the state experience scanty of rain water for a short time period. Scanty मतलब जिसको हम लोग बोले कमी होना, ओके, लेस होना. तो जनरली मोस्ट ऑफ द स्टेट्स होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए उनको स्कैंटी होती है, मतलब पानी जो है वो कम होता है. ड्यू टू अनसर्टेन रेनफॉल, अनसर्टेन मतलब नॉट फिक्स्ड,
मोर देन वन क्रॉप इज रैपिडली ग्रोन ऑन एन एंटायर पोर्शन ऑफ द लैंड। क्या होता है, अनसर्टेन रेनफॉल की वजह से मोर देन वन क्रॉप इज रेयरली ग्रोन, मतलब ओनली एक ही क्रॉप हम लोग ग्रो कर सकते हैं, मोर देन वन इज नॉट वी कैन नॉट डू। समटाइम व्हाट हैपन कि वेजिटेबल्स की बात करें तो फ्लावर मतलब कॉलीफ्लावर के साथ जो अदर जो है वो भी ग्रो होता है। तो अनसर्टेनिटी ऑफ रेनफॉल की वजह से क्या होता है, इट इज़ वेरी वी कैन से hard work for the farmer. Hence, to irrigate, to increase agricultural production, irrigation is necessary. And if you want to increase the agricultural production, तो irrigation बहुत ज़्यादा important है. What is the reason? कि वाटर इज़ अ नेसेसिटी। अगर हम लोगों को की बात करें तो 2 days 3 days वाटर नहीं पियोगे तो चलेगा, देन आफ्टर इट इज़ रिक्वायर्ड। सो द सेम थिंग इट इज़ कनेक्टेड विद द एग्रीकल्चर कि जो भी क्रॉप्स है, सो वाटर इज़ वेरी मच एसेंशियल थिंग। सो टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, और पानी नहीं होगा तो जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज नहीं होगा। तो प्रोडक्ट को इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्शन को इरीगेशन इज नेसेसरी। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग इज गिवन टू यू, द लेंथ ऑफ इंदिरा कैनाल इज 9,525 किलोमीटर एंड इट इज कंसिडर्ड द लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ इंडिया, जहाँ से इरिगेशन फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जाती है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट कैनाल प्रोजेक्ट ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड, सो इट इज़ द लॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट। विच वन? सो इंदिरा कैनाल, और वी कैन से इंदिरा गांधी कैनाल। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस कैनाल दैट द बैरन लैंड ऑफ राजस्थान हैज़ बिकेम फर्टाइल फॉर फार्मिंग। बैरन मतलब उज्जड़, जहाँ पे पानी वानी कुछ नहीं होता है, जहाँ पे कुछ क्रॉप्स भी ग्रोन नहीं होते हैं बिना पानी की वजह से। तो व्हाट हैपन, द राजस्थान बिकेम फर्टाइल फॉर फार्मिंग, और धीरे धीरे करके राजस्थान में वो पानी पहुंचाया गया। तो क्या हुआ, वहाँ पे भी जो फार्मिंग है वहाँ पे मतलब रिसोर्सेज है वो देखने लगे, मतलब दिखाई देने लगे, और राजस्थान में भी लोगों को पीने के लिए और इवन फार्मिंग के लिए भी पानी है वो वहाँ तक प्रोवाइड किया गया। सो with the help of which canal? So Indira Gandhi Canal, and it is the longest canal project in the world and the length is 9,425. And which state got the major like benefit? So Rajasthan. So I hope it is clear to you. Still you have any doubt, so you can write in comment box. I'll try to solve your problems and doubts. And thank you for watching the video. Have a nice day.